साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने ऐसा सुंदर जो है ड्राफ्ट किया संविधान हमारा, जिससे पूरा देश एक पूरे समाज को एक डोरे में पिरो के रखा और पूरे भारत को, जो विभिन्न संस्कृति है, विभिन्न भाषा है हर राज्य की, सबको एक सूत्र में पिरो के रखा हुआ है। तो उस आज के इस पावन अवसर पर मैं उनका भी हृदय से नमन और श्रद्धांजलि देता हूँ। और दूसरी बात मेरा यह है कहना कि एक समाज को समरस रखने के लिए एक सेक्टर 13 और 14 द्वारका के जो भी यहाँ के समाज के लोग हैं, जो भी यहाँ के रेजिडेंट हैं, 1 फरवरी 2026 को एक हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। उसमें सबकी सहभागिता की जरूरत है। उसमें मुख्य रूप से सभी RWA के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का भी योगदान रहेगा। इसमें मोंटी जी भी प्रचार देख रहे हैं, हमारे भंडारी जी भी उसमें हैं व्यवस्था में, सरेंद्र जौहरी जी व्यवस्था में हैं और राखी गौतम जी होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी बर्बाद ना होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी बर्बाद ना होने देंगे। बची है जो एक बूंद लहू की तब तक, बची है जो एक बूंद लहू की तब तक इस भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे। इस भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे। A very good morning to all of you present here. Today I am going to present a speech in front of you. Every year, the National Festival of India, that is Republic Day, is celebrated on 26 January. This Republic Day will be our 77th Republic Day. The chief guest invited on this Republic Day ceremony are Ursula von der Leyen, who is the President of European Commission, and Antonio Costa, who is the President of European Council. The very first Republic Day was celebrated on 26 January 1950 and it marked the beginning of our Indian Constitution. As our Indian Constitution marked the beginning of it, hence it is a very significant and important day for all the Indian children showing exemplary bravery and courage are also awarded with medals and gifts by the Prime Minister. The day of the parade starts with the Prime Minister offering homage to the march. Never let us forget, never let us be shy. Let's make the flag of the nation fly very high. With this quotation, I would like to salute all the freedom fighters and wish you all Happy Republic Day. Thank you.
day of our great nation, India. On this historic day, 26 January 1950, our constitution came into force and India became a sovereign democratic republic. The Constitution of India is not just a book of rules, it is the backbone of our country. It gives us justice, liberty, equality, and fraternity, the values that unite more than a billion people into one nation. We remember and salute the great leaders like Dr. B.R. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, and many others who worked tirelessly to shape our constitution. Republic Day reminds us that power lies in the hands of the people. It teaches us our rights, but more importantly, our duties as responsible citizens. Our duties include respecting the Constitution, following the laws, promoting unity and harmony, protecting public property, and to work honestly for the progress of our nation. India today is progressing in science, technology, education, and sports while still preserving its rich culture and traditions. This progress is possible because of the unity and diversity of our nation. Let us take a pledge today to promote, to be honest, disciplined, and dedicated citizens and to work together for a stronger, cleaner, and more peaceful India. On this proud occasion, I end my speech with these words Jai Hind, Vande Mataram, and thank you. श्रद्धांजलि और नमन करता हूं आज के इस शुभ पावन अवसर पर, और आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री RWA कौटिल्य अपार्टमेंट को भी धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के फेस्टिवल को रेगुलर आयोजित करते हैं। इसके लिए मैं इनका सोमनाथ जी का, मोंटी जी का और पूरे RWA टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज हमें सबको पता है कि भाई गणतंत्र दिवस जो है, हम संविधान जो हमारा था वो देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन देश कैसे चलेगा उसके लिए संविधान बनाया गया। उसकी संविधान सभा की जो प्रेसिडेंट थे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो फर्स्ट राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने ऐसा सुंदर जो है ड्राफ्ट किया संविधान हमारा, जिससे पूरा देश एक पूरे समाज को एक डोरे में पिरो के रखा, और पूरे भारत को जो विभिन्न संस्कृति है, विभिन्न भाषा है हर राज्य की, सबको एक सूत्र में पिरो के रखा हुआ है। तो उस आज के इस पावन अवसर पर मैं उनका भी हृदय से नमन और श्रद्धांजलि देता हूं। और दूसरी बात मेरा यह है कहना कि एक समाज को समरस रखने के लिए एक सेक्टर 13 और 14 द्वारका के जो भी यहाँ के समाज के लोग हैं, जो भी यहाँ के रेजिडेंट हैं, 1 फरवरी 2026 को एक हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। उसमें सबकी सहभागिता की जरूरत है। उसमें मुख्य रूप से सभी RWA के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का भी योगदान रहेगा। इसमें मोंटी जी भी प्रचार देख रहे हैं, हमारे भंडारी जी भी उसमें हैं व्यवस्था में,
शैलेंद्र जौहरी जी व्यवस्था में हैं और राखी गौतम जी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी देख रही हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इन लोगों से कांटेक्ट करके उसमें आप अपना सहयोग दें। तन मन धन तीनों की आवश्यकता है। हम भव्य एक आयोजन करेंगे ताकि समाज के सभी लोग समाज को इकट्ठा होकर देश को मजबूत करने के लिए एक ध्येय है, एक हम संदेश देने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। इन्होंने जो अपना बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय हमारे लिए भी निकाला, हमारी सोसाइटी को आशीर्वाद दिया और इनका आशीर्वाद हमेशा रहता है सोसाइटी के साथ और हर चीज में ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी सोसाइटी को बहुत सहयोग करते हैं और ऐसे ही आपका आशीर्वाद और सहयोग बना रहे, इन्हीं कामना के साथ एक बार बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सर। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है जो कि हम सब मिलके 77वां मना रहे हैं, जो कि RW कौटल्या अपार्टमेंट, ओम अपार्टमेंट मिलके हमेशा जो बुला के सम्मान देती है। मैं ये RW का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज सभी मेंबर यहाँ पे बैठे, मेरी माताएं, बहनें, मातृशक्ति, बच्चे, इतना अच्छा जो हमारा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, मैं इनको सबको बधाई देता हूं। और विशेष RW को जो कि हर साल आपके बीच में अच्छे अच्छे बच्चों का मनोरंजन और RW के माध्यम से और ओम और कौटल्या दोनों मिलके जो ये आयोजन करते हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और क्योंकि आज के दिन एरिया में काफी प्रोग्राम है, मैं ज्यादा ना समय देते हुए आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।